So we were studying Lagrange interpolation, in which you can write interpolating polynomial in this form: L0 x fx0 plus L1 x fx1 and so on. And what are Li? This consists all product in numerator x minus x naught, x minus x1, except x minus xi. And in denominator we have same factors, x की जगह xi कर दो, same factor से division, so that Li at xi is 1 and Li at other points it is 0. So let us take one example how you find that polynomial. So question is that use Lagrange interpolation to interpolate the given data. So we have given data points. You can write x fx or xy. So we have 4 points, and these are x value and these are y or fx function value. Also then also find function value at 1.5. So 1.5 will lie between somewhere here, 1 and 2. So we have 4 data points. Let us write them. First point -1 x0, then x1 0, x2 1 and x3 2. These are 3 points. Function value we have 3. Second one is -4. Third one is 5. And fourth one is -6. So firstly we write Lagrange fundamental polynomials LIs. तो L0 लिखोगे पहले. What is L0? X minus all points, x minus x1, x minus x2, x minus x3. नीचे सेम फैक्टर x की जगह x0 कर दो, x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3. L0 में नुमरेटर में x minus x0 नहीं आएगा, बाकी सारे तीनों पॉइंट्स. ओके, सो x1 is 0, x2 is 1, x3 is 2, and x0 is -1. So -1 minus 0, -1 minus 1, -1 minus 2. So simplify it. This is -1 by 6, x cube minus 3x square plus 2x. In the same manner, just write next one, L1. What would be L1? X minus x0, x minus x2, x minus x3. And division x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3. So just fit all value. Okay, then simplify. And x is any point. So simplify it. 1 by 2 x cube minus 2x square minus x plus 2. Similarly, write L2. So now I'm not going to write formula. So what will be L2? X minus x0. x0 is -1. X minus x1 is 0. X minus x2 नहीं आएगा. X minus x3. और नीचे x2 में से सारे पॉइंट माइनस. तो ऊपर वाले सेम फैक्टर लिख देने आपने, x की जगह x2 फिट करके. So this comes out -1 by 2 from denominator, और numerator अब मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे,
This comes out x cube minus x square minus 2x. Similarly, write L3. So we have 4 points, so you will write 4. L0 for x0, L1 for x1, L2 for x2, and L3 for x3. So what will be L3? X minus x0, x minus x1, x minus x2. और नीचे x3 में से सारे पॉइंट माइनस. सो x3 2 है, 2. So simplify, this is 1 by 6 x cube minus x. So these are 4 Lagrange fundamental polynomials. तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? फार्मूला क्या है? L0 को fx0 से मल्टीप्लाई करो, L1 को fx1 से, एंड सो ऐड करके लिख दो. तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट L0 को मल्टीप्लाई करोगे fx0 3 से, इसको 3 से कर दो. L1 को -4 से, थर्ड को 5 से, और लास्ट को -6. मल्टीप्लाई एंड ऐड. ओके. So finally Lagrange polynomial is 4 पॉइंट से मैक्सिमम 3 डिग्री बनेगा. दैट इज L0x fx0 प्लस L1x fx1 प्लस L2x fx2 प्लस L3x fx3. तो L0 fx0 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो. fx1 -4 है, L1 को -4 से, फिर L2 को 5 से, और -6 L3. जस्ट मल्टीप्लाई करके ऐड करना. फाइनल आंसर जो है -6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x -4. So you can see from 4 points we are getting a 3 degree polynomial. Okay. तो फाइनली उसने पूछा कि आंसर निकालना है आपने फंक्शन का वैल्यू 1.5 पे. तो आप इसमें फिट कर दो. दैट इज नियरली इक्वल्स टू पॉलिनोमियल का वैल्यू 1.5 पे. सो -6 1.5, 8 1.5 plus 7 1.5 minus 4. So fit is, this is 4.25. So in that way you got a formula, and in that formula you can fit x and you can find value, and also you can verify. So this is additional point. Verify कि अगर आपने वेरीफाई करना हो तो पॉलिनोमियल में आप फिट करो सारे पॉइंट. पॉइंट कौन से? -1 निकालो, पॉलिनोमियल में 0 फिट करो, पॉलिनोमियल पे फिट करो अगला पॉइंट 1, देन 2. तो -1 फिट करोगे तो 6 + 8 - 7 - 4. सो दिस कम्स आउट 3. और ये किसके इक्वल है? फंक्शन की वैल्यू -1 पे जो है. सिमिलरली इस पॉलिनोमियल में 0 फिट करोगे, दैट कम्स आउट -4. ये किसके इक्वल है? फंक्शन वैल्यू 0 पे देखो टेबल में -4 है, और 1 फिट करोगे पॉलिनोमियल में तो 5 आएगा. यू कैन चेक, फिट करना इसमें 5 आ जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू एट 1. एंड नेक्स्ट दिस इज फंक्शन वैल्यू एट 2. सो दिस मीन्स जो आपका डाटा पॉइंट है, पॉलिनोमियल इज पासिंग थ्रू फ्रॉम डाटा पॉइंट्स. अब पॉलिनोमियल में x की वैल्यू फिट करो, कौन कौन सी? टेबल वाली वैल्यू. फर्स्ट ये, अगर ये वैल्यू फिट करोगे तो -1 पे आंसर 3 आएगा, 0 पे -4, 1 पे 5, 2 पे -6. दिस मीन्स पॉलिनोमियल इज पासिंग थ्रू गिवन डाटा पॉइंट्स. Okay, so in that way you can construct Lagrange interpolating polynomial from given data point.
Next important example is that this says that interpolating polynomials are unique. Likewise, everyone in unique in this universe. So interpolating polynomial is unique for given data points. छोटा सा रिजल्ट है ये। कहने का मीनिंग है कि अगर आपके पास डाटा पॉइंट फिक्स हैं, पॉइंट चेंज करोगे तो ऑफ कोर्स चेंज होगा। अगर पॉइंट चेंज नहीं कर रहे तो हमने इस टॉपिक में दो इंटरपोलेशन पढ़ने हैं, एक लैग्रांज है, हम आगे न्यूटन भी पढ़ेंगे। एंड देन आई विल सॉल्व सेम एग्जांपल, उससे भी मैं करूंगा सेम एग्जांपल को, एंड यू विल गेट सेम आंसर, यू विल सी, यू विल गेट सेम आंसर, बट दोनों को टैकल करने का वे डिफरेंट है। So this is a result that which says that interpolating polynomial is unique for given points. Of course, if you take same point, it is same, but if you change point, so that polynomial will change. तो ये छोटा सा एक्सरसाइज है। अब मैथ में कभी आपने यूनिक शो करना हो तो हम क्या करेंगे, हम ऑन द कॉन्ट्ररी अज्यूम करेंगे। सो वी अज्यूम दैट देयर आर टू पॉलिनोमियल्स फॉर गिवन पॉइंट्स, फिर दोनों को हम सेम शो कर देंगे। ठीक है, तो दो अज्यूम कर रहा हूं मैं, लेट पी एन जो भी एन डिग्री एंड क्यू एन एक्स, पी एंड क्यू आर टू इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर गिवन पॉइंट्स। अब पॉइंट्स को आप लिख लो x0, x1 एंड सो ऑन, और जो फंक्शन है विच इंटरपोलेट्स फंक्शन fx। इंटरपोलेशन में दो चीजें होंगी, एक तो x वैल्यू होंगी, एक y या फंक्शन वैल्यू। ठीक है, फंक्शन का फार्मूला दे सकता है आपको, फार्मूला दे दे या टेबल में वैल्यू दे दे उनका, सो बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, पेयर है आपके पास पॉइंट x और fx। तो हमने अज्यूम क्या किया है, दैट देयर आर टू पॉलिनोमियल्स, ओके, व्हिच इंटरपोलेट द सेम डाटा। अब बाय डेफिनेशन क्या होगा, दो पॉलिनोमियल हैं तो दोनों वहां से पास होंगे। सो बाय डेफिनेशन दोनों पास होंगे, तो इसका मीनिंग क्या है, उन पॉइंट्स पे सब पे x0, x1, x2 उन पे पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, फंक्शन के इक्वल होगा। और i क्या है, 0, 1, 2 एटसेट्रा जितने पॉइंट हैं। और q भी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, तो q भी वहां से पास होगा, सो q इज आल्सो इक्वल टू fxi और i x0, x1 अप टू xn। यानी कि सारे जब पॉइंट फिट करोगे, मान लो आपके पास ये p का ग्राफ है, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं आपके पास, लेटर से ये पॉइंट्स हैं x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। तो जो q होगा वो q भी इन पॉइंट से पास होगा, तभी तो इंटरपोलेट करेगा ना। इंटरपोलेशन का मीनिंग है वो पॉलिनोमियल वहां से पास हो रहा है। तो दोनों का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, फंक्शन वैल्यू के। ये y वैल्यू यही होती है, वर्टिकल वैल्यू। ठीक है जी, अब दोनों को इक्वल शो करना है, तो मैं दोनों का डिफरेंस लिख रहा हूं s, वो क्या है, pnx माइनस qnx लिख सकते हैं। अब इसको मैं लिख रहा हूं उन पॉइंट्स पे xi पे, x0 पे, x1 पे, x2 पे, सब पे। तो ये क्या बन जाएगा, pn एट xi माइनस qn एट xi, यानी कि डिस्क्रीट पॉइंट्स पे 0, 1, 2 पे, x0 पे, x1। अब इस पे दोनों ही fxi हैं, ऊपर लिखा मैंने, p भी xi fxi है, ये भी fxi है। तो Sn xi इक्वल टू 0। तो टोटल कितने पॉइंट हैं आपके पास, 0, 1, 2 अप टू n, टोटल n+1 पॉइंट है। और यही कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे।
So this implies Sn has n plus वन रूट्स, इन पे जीरो बन रहा है तो रूट है ये उसके। अब रूट कौन से हैं? x0, x1 up to xn, all these are roots, which is not possible. तो क्यों पॉसिबल नहीं है? as Sn has degree less than or equal to n. अब देखो p और q n डिग्री पॉलिनोमियल है, मान लो मेरे पास 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, एक ये है, रफली कह रहा हूँ, एक ये है, दूसरा मेरे पास ये है। और दोनों को प्लस या माइनस करोगे, दोनों को माइनस करोगे तो उसकी डिग्री कितनी आएगी? 3 आएगी मैक्सिमम, ऐसा तो नहीं 4 बन जाएगी। 3 होगा या 3 से कम भी हो सकता है। अगर ये 3 होता तो एक्स क्यूब कैंसिल होके 2 बन जाता। ठीक है, कहने का मीनिंग है अगर आप दो n डिग्री पॉलिनोमियल को माइनस करोगे तो जो नया पॉलिनोमियल बनेगा दैट विल हैव डिग्री मैक्सिमम n, उनके बराबर ही होगा n। तो अब n डिग्री पॉलिनोमियल के रूट कितने होंगे? मान लो क्यूबिक है तो कितने रूट होंगे उसके? 3 रूट होते हैं, बेसिक रिजल्ट है ये। n डिग्री पॉलिनोमियल उसके n रूट होंगे, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? n प्लस वन, विच इज नॉट पॉसिबल। n डिग्री पॉलिनोमियल के n प्लस वन रूट नहीं हो सकते। हाँ, एक केस में हो सकते हैं, अगर आपका Snx 0 हो तो 0 को आप कुछ भी लिख लो, 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर ये पॉसिबल है फॉर एवरी x। तो अगर Sn 0 होगा तो Sn लिखा क्या है आपने? p माइनस क्यू, तो उसका मीनिंग क्या होगा? Pn एंड Qn बोथ आर सेम। So therefore interpolating polynomial is unique. कहने का मीनिंग है ये दोनों पॉलिनोमियल इन पॉइंट्स पे तो इक्वल हैं ही ये, बट अदरवाइज दे आर सेम, वो दोनों सेम ही हैं, p और q। So for given data points you cannot find two polynomials, so that polynomial will be unique. फॉलो कर रहे हो? ओके, ये वैसे छोटा सा थ्योरेटिकल रिजल्ट है, बट आई हैव रिटन एज एन एग्जांपल। ओके, एनी डाउट इन दिस? बोलो बच्चों। let us take one more example. So this example is related with error। जैसे मैंने बोला था कि इंटरपोलेशन का मीनिंग क्या है कि आपके पास लेट अस से यू हैव, ये आपके पास वैल्यू दे रखी है, ओके। सो फाइंड ए पॉलिनोमियल व्हिच पासेस थ्रू गिवन पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट्स पे तो दोनों इक्वल होते हैं, बट बाकी पॉइंट पे मान लो f आपका मान लो ऐसा है, f की बात कर रहा हूँ, f फंक्शन तो कैसा भी हो सकता है ना, बट इन पॉइंट पे तो इक्वल होंगे। तो बाकी पॉइंट पे जो डिफरेंस है, दिस वन, बाकी कोई पॉइंट लेते हो, मान लो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, आपने 1.5 लिया, तो 1.5 पे इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि एक वैल्यू तो ये, एक तो ये कह रहा है, दूसरा वर्टिकल पूरा कह रहा है, डिफरेंस क्या बना है उनका? ये इतना डिस्टेंस, तो इसको हम बोलेंगे एरर। एरर मतलब f माइनस पी, f इक्वल टू p फॉर गिवन पॉइंट्स, बट फॉर अदर पॉइंट्स f may not be equals to polynomial value and this is called error। तो अगले आर्टिकल में हम एरर ड्राइव करेंगे। बिफोर आई एम राइटिंग
short example. So this example says that you have fx, which is square root x minus x square, and p to be Lagrange polynomial, or you can say Lagrange interpolating polynomial on points. 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक 0 है, एक x1 नहीं दे रखा उसने, और x2 1 है. अब क्वेश्चन वही है कि he is asking what is x1. So find the largest value of x1 in 0 1. मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है. 0 1 फॉर विच 0.5 पे एरर दे रखा है उसने. f 0.5 माइनस पॉलिनोमियल 0.5 इक्वल्स टू माइनस 0.25. तो सेम वे में करना है. पहले आपने लग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड करना है. तो पॉइंट मेरे पास क्या है, 0, x1 एंड x2 इज 1. तो इन पे फंक्शन वैल्यू निकाल लो. पहला पॉइंट 0 है, तो 0 फिट करोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 0 स्क्वायर. फार्मूला है x माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज 0. फिर आप x1 फिट करोगे, x1 नहीं दे रखा, सो यू विल जस्ट fit x1 symbolically. Then you will fit fx2. This is 1, so this is again 0. तो जो लग्रांज पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, 3 पॉइंट से 2 डिग्री p2, that will be L0x fx0 plus L1x fx1 plus L2x fx2. तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि fx0 और fx2 ये दोनों वैल्यू 0 हैं. सो नो नीड टू कैलकुलेट L0 एंड L2. अब मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाना है उनको. तो आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट आपका L1 fx1. तो fx1 कितना है, x1 minus x1 स्क्वायर. So therefore just find L1. So what will be L1? x minus x0 L1. बाकी अब 3 पॉइंट हैं तो 2 प्रोडक्ट आएंगे. तो L1 में x माइनस x1 नहीं आएगा, बाकी दोनों x माइनस x0 x माइनस x2, और नीचे सेम फैक्टर x की जगह x1 कर दो, x1 माइनस x0 x1 माइनस x2, एंड फिट ऑल वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई इट. तो x0 तो 0 ही है, तो x माइनस 0 x माइनस x2 1 है, और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस इज x1 माइनस x0 तो 0 ही है, और x1 माइनस x2 इज 1. सो दिस इज माई L1. अब ये L1 का वैल्यू यहां डाल दो. ओके, देन यू कैन राइट P2. फिर आपने ये रिजल्ट यूज करना है. फंक्शन की वैल्यू 0.5 पे, वो निकाल लो फार्मूले से. स्क्वायर रूट 0.5 माइनस 0.5 स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा फंक्शन. पॉलिनोमियल यहाँ से निकल जाएगा. x को 0.5 फिट कर दो, दोनों का माइनस करो, वहां से आपको x1 मिल जाएगा. ओके, तो पहले हम P2 लिख लेते हैं. सो फर्स्टली आई एम राइटिंग P2. देयरफॉर P2 का फार्मूला क्या बन गया, L1 x माइनस 1, फिर ये आ गया स्क्वायर रूट x1 माइनस 1 एंड अंडर रूट x1 माइनस x1 स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट में x1 1 माइनस x1 ये कैंसिल भी कर सकते हो नीचे आप, एक फैक्टर. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको. Okay, just simplify it, so you can take minus outside from denominator, so that comes out x minus 1, then square root x1 1 minus x1. एक फैक्टर यहाँ से कैंसिल होगा यहाँ से इसके साथ, बट पहले आप इसको 1 माइनस x1 लिखोगे, माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ. ओके, x1 भी x1 एक कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस x1 भी एक कैंसिल हो जाएगा, सो you will get under root 1 minus x1 in denominator.
सो जस्ट सिंप्लीफाई इट P2, फिर आपने रिजल्ट यूज करना है देयरफॉर नाउ f at 0.5 minus polynomial at 0.5, this is equals to minus 0.25. तो वैल्यू फिट कर दो। सो फंक्शन 0.5 पे 0.5 माइनस 0.5 स्केयर, अब पॉलिनोमियल में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 0.5, 0.5 x माइनस 1 और यहाँ पे था स्केयर रूट x1 1 माइनस x1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 0.25। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो थोड़ा, इसको इसको राइट में ले जाओ, इससे डिवाइड कर दो, स्केयर कर दो। जब स्केयर करोगे तो ये बन जाएगा x1 स्केयर माइनस x1 प्लस 1/9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक है, दो रूट निकाल लो, इसका जो आंसर आ रहा है 1/2 प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है ना, ax के प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। x क्या आता है माइनस b प्लस माइनस b के माइनस 4ac/2a, x की जगह x1 है, सॉल्व फॉर x1। सो यू आर गेटिंग टू वैल्यू, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा? लार्जेस्ट कौन सा होगा जिसमें प्लस साइन होगा? सो दिस इज आंसर। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 0.8727। So in that way you can you can also write, you can also find point when you know the error. Any doubt in this example? Okay, so just go with the question. फंक्शन दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट से 2 डिग्री बनेगा, L0 fx0 L1 fx1 L2 fx2। Since fx0 and fx2 both are 0, so you need to just compute L1। तो L1 लिख लो, तो आपको पॉलिनोमियल मिल गया। तो फंक्शन 0.5 पे माइनस पॉलिनोमियल 0.5 पे, दैट इज इक्वल्स टू एरर। तो वहां से आपको x1 निकाल लो। x1 में क्वाड्रेटिक है, सो यू आर गेटिंग 2x1। ट्राई टू राइट लार्जेस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रंकेशन एरर। जैसे हमने ये लिखा था ना, ट्रंकेशन एरर का मीनिंग है कि f माइनस पी क्या होगा और p माइनस f। एरर का मीनिंग क्या होगा? फंक्शन माइनस पॉलिनोमियल का डिफरेंस निकाल लो। तो नेक्स्ट एक थ्योरम है, मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, इसका प्रूफ आपने करना है। ओके, सो यू शुड प्रिपेयर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम फॉर एग्जाम एज वेल। तो ये थ्योरम ट्रंकेशन एरर का ही है। ये कहता है कि f माइनस पी का फार्मूला क्या होगा। अब गिवन पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स दे रखे हैं x0 x1 उन पे तो ये दोनों इक्वल हैं, तो एरर 0 होगा, f इक्वल टू पी। बट बाकी पॉइंट्स पे, जैसे हमने एग्जांपल किया था पहले, ये पॉइंट्स हैं -1 पे तो इक्वल हैं दोनों, 0 पे 1 पे भी इक्वल हैं, 2 पे भी। अब मान लो 1.5 पे क्या होगा, 0.5 पे, 0.7 पे, है ना, उनके बीच में जो कोई वैल्यू होगी उन पे ये दोनों जुड़ी नहीं कि इक्वल हो, तो इनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एरर। So this theorem says that how you can find error. Okay, तो एक थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास पॉइंट्स हैं, लेट x0 x1 x2 xn are distinct points in some interval a b. Let p be interpolating polynomial of degree less than or equal to n
which interpolates f, and f is n plus 1 times continuously डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये थ्योरम में रिक्वायर है कि आप, इसका मीनिंग है कि आप f का n प्लस 1 डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, एंड दैट इज आल्सो कंटिन्यूस। सो f इज n प्लस 1 टाइम्स कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, मींस n प्लस 1 डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और दैट विल बी आल्सो कंटिन्यूस। तो अगर ये हो देन, तो जो एरर होगा, देन प्रूव दैट जो f और p का डिफरेंस होगा f माइनस p, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स, ऑल प्रोडक्ट्स अप टू x माइनस xn डिवाइड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाई f n प्लस 1 डेरिवेटिव। ये यूज हो रहा, तभी हमने लिखा वहां पे एट पॉइंट c। और c क्या है? c इज ए फंक्शन ऑफ x। c a और b के बीच में कोई पॉइंट है। ये लिखने का तरीका मैथ्स में कि c डिपेंड ऑन x। तो ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है, f माइनस पी ऑल प्रोडक्ट्स इन न्यूमरेटर multiply by fn plus 1 derivative at some point c divide by n plus 1 factorial। अब प्रूफ में पहले मैं बता देता हूं हमने करना क्या है। आपने एक रोल थ्योरम पढ़ी होगी पहले, रोल्स थ्योरम मैथ वन वगैरह में। ये कहती है कि अगर फंक्शन ए और बी पॉइंट है, एफ ए और एफ बी अगर जीरो है, ओके, अगर अदर वर्ड्स में कहें तो एफ के दो रूट हैं ए और बी, तो उनके बीच में एक पॉइंट सी होगा, एफ डैश सी विल बी जीरो। ये आपने पढ़ी है ना। फंक्शन के दो रूट हो तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का एक रूट होगा। इस थ्योरम का एक जनरल वर्जन भी है, और जो सी होता है ए और बी के बीच में, तो ये वही सी है यहाँ पे। इसका एक जनरल वर्जन भी है, वो ये कहता है कि अगर मान लो फंक्शन के तीन रूट हों, ठीक है, फंक्शन के तीन रूट हैं, ए बी सी कुछ भी कह लो, तो सेकंड डेरिवेटिव उससे, यानी कि तीन उससे एक कम, सेकंड डेरिवेटिव का एक रूट जरूर होगा। ऐसे जनरल रिजल्ट है। अगर फंक्शन के चार रूट हों तो थर्ड डेरिवेटिव का एक रूट जरूर होगा उस इंटरवल के अंदर। तो ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। इसको हम बोलते हैं जनरल रोल थ्योरम। ओके, सो अब एक फंक्शन लिखना है हमने, एफ और पी के डिफरेंस से बनाना है, और उस पर आपने रोल थ्योरम लगा देनी है, और रिजल्ट ये प्रूफ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। एक फंक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्ट करना है, और उस पर रोल थ्योरम लगा के आपको ये मिल जाएगा एफ माइनस पी। तो फर्स्टली गिवन क्या है? सो गिवन पॉइंट्स हैं, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन आर गिवन पॉइंट्स, और f है जो n, इसको ऐसे भी लिखते हैं n प्लस 1 टाइम्स कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये लिखने का तरीका, f बिलोंग्स टू सी n प्लस 1, जो मैंने लैंग्वेज लिखी थी, f इज n प्लस 1 टाइम्स कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, सेम थिंग। ओके, सो दिस इज जस्ट ए वे टू राइट इट। अब p क्या है? लेट p be interpolating polynomial which interpolate function fx. So this is given information. Okay,
सो नाउ डिफाइन ए न्यू फंक्शन, एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, जी टी वेरिएबल का फंक्शन है वो एफ टी माइनस पी टी, और ये आपने कंप्यूट करना है एफ एक्स माइनस पी एन एक्स। इसका फॉर्म ऐसा है कि इस पे अगर आप रोल थ्योरम लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक टेक्निकल फॉर्म है इसका। तो ऊपर न्यूमरेटर में सारे फैक्टर हैं, टी माइनस एक्स जीरो, टी माइनस एक्स वन अप टू टी माइनस एक्स एन, और डिवीजन में सेम फैक्टर हैं, टी की जगह एक्स, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स एन। ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड कंटिन्यूस है सब कुछ, सो जी इज आल्सो, आप जी को भी लिख सकते हो, एवरीथिंग इज कंटिन्यूस, सो यू कैन राइट जी आल्सो एन प्लस वन टाइम्स कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। तो अब मैंने जी के रूट लिखने हैं टू अप्लाई रोल थ्योरम। अब जी के रूट कौन कौन से होंगे? जी में टी की जगह एक्स फिट करो। जी टी का फंक्शन है, टी के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो एक्स फिट कर रहा हूं मैं, एक्स एक्स फिट करोगे तो क्या बनेगा? एफ एक्स माइनस पी एन एक्स माइनस एफ एक्स माइनस पी एन एक्स, ऊपर क्या बन जाएगा? एक्स माइनस एक्स नॉट अप टू एक्स माइनस एक्स एन। नीचे भी सेम फैक्टर, एक्स माइनस एक्स नॉट, टी को एक्स फिट कर दिया, ये सारे कैंसिल हो गए, एफ एफ कैंसिल हो गया, पी पी, सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो जी का एक रूट तो हो गया एक्स, बाकी लिखते हैं। बाकी आप एक्स आई फिट करो, एक्स आई, एक्स आई कोई भी एक्स आई फिट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ एक्स आई माइनस पी एक्स आई। अब ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। ठीक है, जी एक्स आई इक्वल्स टू जीरो, क्यों? एज एफ एक्स आई इक्वल्स टू पी एक्स आई रनिंग फ्रॉम जीरो वन टू अप टू एन, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिट करोगे, एफ एक्स आई माइनस पी एक्स आई, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो रेशियो है यहाँ पे, मान लो पहले आपने एक्स जीरो फिट किया, टी को एक्स जीरो, तो टी इक्वल टू एक्स जीरो, ये टर्म जीरो कर देगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग जीरो, और एफ एक्स जीरो माइनस पी एन एक्स जीरो दोनों इक्वल हैं, ये जीरो बन गया। कोई भी पॉइंट फिट करो, एक्स वन फिट करोगे तो ये टर्म जीरो बन जाएगी, ये सारे एक्स वन माइनस एक्स वन जीरो, और एफ एक्स वन माइनस पी एक्स वन ये भी जीरो बन जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं ये। इन पॉइंट्स पे एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू एक्सेट्रा, एफ इक्वल टू पी, तो इन पॉइंट पे भी जी जीरो बन गया। कौन कौन से पॉइंट पे? जीरो वन टू, तो लिख दिया मैंने आगे, चलो। तो जी के रूट कितने बन गए फिर? सो दस जी हैज, ये n प्लस वन पॉइंट तो ये है और एक x है, तो g के n प्लस टू रूट्स बन गए, g हैज n प्लस टू रूट्स। तो अब थ्योरम लगा दो, देयरफॉर बाय, इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड रोल्स थ्योरम। देयरफॉर बाय जनरलाइज्ड रोल्स थ्योरम, इसको मैं नंबर भी लगा देता हूँ g को फर्स्ट। देयरफॉर बाय जनरलाइज्ड रोल्स थ्योरम, अब g के n प्लस वन टू रूट्स हैं। अब रोल थ्योरम क्या कहती है? इट्स, अब चाहे, सो बाय जनरलाइज्ड रोल थ्योरम, g का n प्लस वन डेरिवेटिव will have at least one root। अब कोई ना कोई रूट उसका होगा, से दिस रूट इज c। ठीक है, g के n प्लस टू है, तो उससे एक कम डेरिवेटिव कौन सा बनेगा? n प्लस टू से एक कम क्या होगा? n प्लस वन। तो g का n प्लस वन डेरिवेटिव सम पॉइंट c पे वो जीरो बन जाएगा। अब आपने बाई फर्स्ट, जिसमें मैंने फर्स्ट लिखा था, वहां से इसका n प्लस वन डेरिवेटिव निकाल लो।
एक्स टी का फंक्शन है, टी लिख रहा हूँ पहले मैं। तो इसका n प्लस वन डेरिवेटिव क्या आएगा, जी का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इसका डेरिवेटिव n प्लस वन क्या आएगा, इसका n प्लस वन, इसका n प्लस वन, फिर इसका, सबका लिख दो। तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, f का n प्लस वन डेरिवेटिव, ये तो आना ही है, n डिग्री पॉलिनोमियल उसका n प्लस वन डेरिवेटिव। अब t के सेंस में दिख रहे हो तो f माइनस पी तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस एक्स जीरो, ये सारे एज इट इज आ जाएंगे। और सिर्फ आपने डेरिवेटिव किसका लिखना है, इसका लिखना है, न्यूमरेटर का। इसका डेरिवेटिव बता सकते हो क्या होगा, जैसे मेरे पास मान लो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, अब ये भी t टोटल फैक्टर n प्लस वन है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हाईएस्ट पावर कितना आएगा, t n प्लस वन एंड सो ऑन आएगा बाकी। तो इसको थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक बार करोगे तो 3t स्क्वायर माइनस 6t, 2 बार करोगे तो 6t, 3 बार करोगे तो 6, यानी कि फैक्टोरियल 3 आता है t क्यूब का। तो सेम वे में आपने करना है, इसका डेरिवेटिव करना है n प्लस वन, तो t का n प्लस वन से ही आएगा, तो t का n प्लस वन का n प्लस वन डेरिवेटिव क्या होगा, फैक्टोरियल n प्लस वन आ जाएगा। xn का nth डेरिवेटिव होता है फैक्टोरियल n, तो t n प्लस वन का n प्लस वन डेरिवेटिव दैट विल बी n प्लस वन फैक्टोरियल। और ये पॉलिनोमियल है n डिग्री, मान लो n डिग्री n 3 है, अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका 4 डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये होता है, अब x के 2 डिग्री है, एक बार डेरिवेटिव किया 2x, 2 बार किया 2, 3 बार करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो n डिग्री पॉलिनोमियल का n प्लस वन डेरिवेटिव दैट इज 0, तो इसमें फिट कर दो आप, देयरफॉर जी n प्लस वन, तो वो क्या आ जाएगा, f का n प्लस वन डेरिवेटिव एट c, ये टर्म तो 0 बन गई p वाली, माइनस एफ एक्स माइनस t को आपने लिखना है c है ना, n प्लस वन डिवाइड बाई x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, बस ये प्रूफ हो गया, इक्वल्स टू 0, n प्लस वन डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से आप निकाल लो एफ एक्स माइनस पी एक्स, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, एफ एक्स माइनस पी एक्स, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एफ एन प्लस वन डेरिवेटिव से, एंड डिवीजन में आ जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। और आप एरर फार्मूले में भी फिट करके देख लो, x को x0 फिट करोगे एरर 0, x को x1 फिट करोगे एरर 0, तो कोई भी पॉइंट उन गिवन पॉइंट से फिट करोगे देन एरर विल बी 0। सो दिस इज द एरर फार्मूला, fx minus px equals to all product x minus xi, x minus x0, x minus x1 and so on up to x minus x1 multiply by f का n plus वन डेरिवेटिव at some point c। अब c कोई पॉइंट है, वो x0 और x1 के बीच में कोई पॉइंट है, एंड डिवीजन आपने किया है n plus वन फैक्टोरियल से। तो प्रूफ थोड़ा सा टेक्निकल है, ये आपने फंक्शन डिफाइन करना है g। अब g फंक्शन ऐसे डिफाइन है, कंस्ट्रक्शन इसकी ऐसे है कि g पे अगर रोल थ्योरम लगाओगे तो आपको f माइनस पी मिल जाएगा। तो g एक नए वेरिएबल t का फंक्शन है, एफ टी माइनस पी टी माइनस एफ एक्स माइनस पी एक्स मल्टीप्लाई बाई दिस रेशियो। तो जब इसमें t को x फिट करोगे तो ये g 0 बन जाता है, और बाकी सारे पॉइंट x0, x1 अप टू xn फिट करोगे देन g इज आल्सो 0। So g has n plus 2 roots. So by Rolle's theorem, its n plus 1 derivative will have at least one root.
तो g को n+1 टाइम डिफरेंशिएट करना है। g को n+1 तो किसको करोगे, f को, सारी टर्म को करोगे जिसमें t है। और ये फैक्टर समझ गए ना, ऊपर मैंने जो लिखा था t माइनस x0। देखो मान लो दो ही फैक्टर हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा, यहाँ से टी स्क्वायर ही मिलेगा, फिर टी के साथ कुछ आएगा एंड सो ऑन। और तीन फैक्टर होते तो हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा आपको, टी क्यूब मिलेगा। तो वहां पे n+1 फैक्टर है, तो हाईएस्ट पावर कितना आएगा, tn+1। तो tn+1 आएगा, साथ में tn के साथ भी कुछ आएगा एंड सो ऑन। बट आपने डेरिवेटिव करना है n+1 टाइम। तो जब tn या t लोअर पावर को n+1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, दे ऑल वैनिश, सिर्फ यही बचेगा। और tn+1 का n+1 डेरिवेटिव क्या होगा, n+1 फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो उस प्रोडक्ट से when you differentiate you will just get n+1 factorial, and pn is n degree polynomial, so its n+1 derivative will be 0। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। I'll stop now, and in next class we will do some problem based on this error, and I think after that you will come here in campus, and second kind of interpolating polynomial which is Newton, that we will study here। तभी थोड़ा सा मैंने आज थोड़ा जल्दी किया, since I want to complete it। मैं सोच रहा हूँ कि लग्रांज कल खत्म हो जाए, कल आपका एक लास्ट क्लास है ना, तो कल अभी लग्रांज इसके एग्जांपल करेंगे तो कल ही खत्म हो जाएगा लग्रांज। सो फ्रॉम न्यू क्लास आफ्टर vacations we can start second kind of interpolating polynomial which is known as Newton's interpolating polynomial। और ये जो रिजल्ट है ये दोनों में ही वैलिड है। हमने कोई फॉर्म यूज नहीं करा कि हमने कहा कि कोई इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, हमने ये नहीं लिखा कि लैग्रांज है कुछ भी है। सो दिस एरर रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी इंटरपोलेशन। ये दोनों में ही है, लैग्रांज में भी है, अगला पढ़ोगे उसमें भी सेम रिजल्ट है। एनी डाउट? ओके, सो वी विल मीट टुमारो ऑनलाइन।